صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد مجلس اتحاد المسلمین کے قومی معتمد عمومی جناب احمد پاشا قادری صاحب، ریاست بہار کے صدر اختر الایمان صاحب، دائش پر موجود مجلسی امیدواران اور آج کے اس مرکزی جلسے میں میرے مجلسی جیالوں اور حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، آپ تمام حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کو سلام ہے، کیونکہ آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نئی امید دی، ایک نئی روشنی دی، ایک عزم اور اعتماد دیا، اور آج پورے ہندوستان میں ریاست تلنگانہ حیدرآباد نا امید مسلمانوں کے لیے امید بنی ہوئی ہے۔ آپ کے اس چراغ میں، جس چراغ کو آپ کے بزرگوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے ساتھ میں، بڑی جد و جہد کے ساتھ میں، بڑی محنتوں کے ساتھ میں جس چراغ کو آپ نے جلایا ہے، آج اس چراغ کی روشنی نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو منور کیا ہے، نا امیدی کو ختم کیا ہے، ایک اعتماد، ایک ارادہ، ایک حوصلہ اگر کہیں سے ملا ہندوستان کے مسلمانوں کو تو سلام ہے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کے اتحاد کو، کہ آپ کی جانب سے آج ہم کو اعتماد ملا، حوصلہ ملا، ارادہ ملا۔ الحمدللہ ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ دور اندیش لوگ، وہ دور اندیش شخصیتیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلے ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں کسی ریاست نے، کسی شہر نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کی بات کہی تو حیدرآباد کے مسلمانوں نے مجلس اتحاد المسلمین، فخر ملت علیہ رحمہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے، فخر ملت علیہ رحمہ نے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کو آواز دی تو آپ نے لبیک کہا اور مجلس اتحاد المسلمین کے شانہ بشانہ چلے۔ سالار ملت نے آواز دی تو آپ نے لبیک کہا، آج نقیب ملت، حبیب ملت آپ کو آواز دے رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ میں ہے، آپ کا اعتماد ان کے ساتھ میں ہے، اور سلام ہے خاندان اویسی کو کہ آپ کے ووٹوں کا حق ادا کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آج حیدرآباد میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو خوشحالی ہے، جو تعلیمی میدان میں آپ لوگ آگے ہیں، صحت کے میدان میں آپ لوگ آگے ہیں، غرض زندگی کے ہر شعبے میں آپ آگے ہیں، تو اس کی وجہ ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ میرے پیارے مسلمانوں، آج آپ کے اس قلعے کو، آپ کے اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے سنگ پریوار، بی جے پی، ہندو مہاسبھا اور آر ایس ایس کی ذیلی جتنی تنظیمیں ہیں، وہ سب کے سب مل کر کانگریس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ کانگریس جس نے اس ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک
किसी समाज को पीछे किया या उसको इंसाफ नहीं मिला या उस समाज के हक मारा गया, उन मुसलमानों को आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के किले से दूर करने के लिए नए नए तरीकों से जाल बिछा रही है। मेरे प्यारे भाई, आज यह आपका हैदराबाद का किला हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बना हुआ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मॉडल बना हुआ है। अरे हमको फक्र होता है हैदराबाद के मुसलमानों पर, हमको फक्र होता है आपके एतमाद पर, हमको फक्र होता है आपकी गैरत और आपकी हमियत पर। वो इस वजह से कि यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान के मुसलमानों का सियासी मरकज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारी मताए अजीज है। वरना मेरे प्यारे भाई, आज कई मजलिस जिम्मेदारान, मजलिसी कारकुनान आपके हलकों में आपसे कुछ सीखने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, कई रियासतों से आज यहां पर आए हुए हैं। लेकिन जब यहां देखते हैं आपके चेहरों को, आपकी खुशहाली को, तो वो बात जरा बैठ कर अगर आप 10 मिनट उनके अपनी रियासतों की पूछ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस शहर से आपका ताल्लुक है, जहां आप रहते हैं, तो हमारी मां बहनें, जब हैदराबाद का मुसलमान अपने काम को, अपने कारोबार को सुबह घर से निकलता है तो घर वालों को दुकान पे जाकर आने तक, शाम तक किसी चीज की फिक्र नहीं होती है। सुकून से सब कुछ यहां पर मयस्सर है। लेकिन ये बात अगर पूछा जाए दूसरी रियासतों के मुसलमानों से तो मुसलमान बेचैन है। मुसलमान अगर कोई सुबह घर से निकलता है तो यह डर और खौफ सता रहा है उनके घर वालों को कि पता नहीं कब दाढ़ी और टोपी के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आज पता नहीं कि किसी लीडर को दिन के उजाले में गोली मार दी जाएगी या इनकाउंटर के नाम से मुसलमानों को मारा जाएगा या बुलडोजर चला जाएगा हमारी इबादत गाहों पे या हमारे घरों पर। आज इत्मीनान नहीं है जिंदगियों में, आज परेशानी से गुजर रहा है दीगर रियासतों का मुसलमान, लेकिन आज हैदराबाद में इत्मीनान भी है। आज हैदराबाद के मुसलमानों के अंदर किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान है तो हैदराबाद का है। आज हुकूमत से लेकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हुकूमत की तमाम इस्कीमात को आप तक पहुंचा रही है। अरे किसी खाकी वर्दी वाले की हिम्मत नहीं होती है कि यहां से किसी बेकसूर मुसलमान को उठाकर जेल में डाल दे। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सब कुछ है तो उसकी वजह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। ये सब कुछ है तो आपका इत्तेहाद है, ये सब कुछ है तो आपके लिए लड़ने वाले हैं। और जहां पर हम रहते हैं वहां पर ये कुछ नहीं है। हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं है। आज से 2 माह पहले आप तमाम ने अपने मोबाइलों में देखा होगा कि किस तरीके से मुंबई से जाती हुई ट्रेन जो जयपुर एक्सप्रेस थी, उस ट्रेन में 3 मुसलमानों की शनाख्त करते हुए एक खाकी वर्दी में जो दरिंदा था, जिसको इंसानियत की हिफाजत के लिए बंदूक दी गई थी, उसने 3 मुसलमानों को शहीद किया, उनके सीनों में गोली मारी, उनको कत्ल किया। एक का ताल्लुक बिहार से था, दूसरे का ताल्लुक राजस्थान
कांग्रेस की हुकूमत है और वो कांग्रेस आप तमाम के हल्काजात नौकने हल्काजात में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, गारंटी कार्ड की बात कर रही है। राजस्थान का एक मुसलमान था, बिहार का एक मुसलमान था, और आपके अपने शहर हैदराबाद बाजरघाट का एक मुसलमान था जिसको शहीद किया गया था। लेकिन बताओ कि राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, क्या किसी किस्म का कांग्रेस ने उस मुस्लिम शहीद के घर पर जाकर क्या उसके बेवा को कुछ हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया? या यही हाल बिहार का है, बिहार में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ऐवान असेंबली में खड़े रहकर वक्त के हुक्मरान को, चीफ मिनिस्टर को कहा कि हमारे बाजार घाट का रहने वाला एक शख्स जिसको मुंबई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में कत्ल किया गया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी बेवा को नौकरी दे, उसके बच्चों के अकाउंट में पैसा डाले, और रहने के लिए उसको घर नहीं है घर दे। घर भी मिला, पैसे भी मिले, और साथ ही साथ उस बेवा को नौकरी मिली। दूसरी जगह नहीं हुआ। आज कांग्रेस के लोग आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलकों में गारंटी कार्ड की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, नए नए स्कीमात को ला रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। अरे इनकी क्या गारंटी है? मध्य प्रदेश में 18 एमएलए जीत के आए थे, चले गए बीजेपी के अंदर। महाराष्ट्र में जीत के आए थे, शिवसेना के साथ चले गए। गोवा में जीत के आए थे, चले गए बीजेपी के साथ में। इससे कांग्रेस शुरू दिन से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है, और आज हैदराबाद के आपके किले को कमजोर करने के लिए ये संघी परिवार के साथ में रहकर आज हैदराबाद के मुसलमानों के इतिहास को कमजोर करने आई है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, आज वक्त और हालात का तकाजा है कि मुत्तहिद होकर इन तमाम बातिल ताकतों का हम जवाब दें। वाक़िमु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मैं रियासत बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने असेंबली अली जनाब अख्तर उल ईमान साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि जल्द को मुखातिब करें।